Okay, Vaishali, so you are preparing for which organization? Sir, UPPCL. Assistant engineer. Okay, and today you want to give the snap for which subject? Sir, power system. Power system. Okay. uh, what do you mean by load flow? Load flow. Actually, we can define the load flow uh, if there is any power calculation is there. We want to know the voltages in a system. So, with the help of load flow, we can easily calculate it with the Vibers. What are the methods? Using the Vibers method, we can calculate the load flow calculation. Okay, tell me one thing. Why we using Y-bus in the load flow and Z-bus in the fault analysis? Because for fault calculation, we need the impedance, and Z is the full matrix, and we know each impedance of any system. So it will be easier for us to calculate the fault and voltage drop in the system. And the load flow, we are using the Y-bus. It is a sparse matrix, and it makes the calculation easy because due to the sparsity, we will be able to reduce the work of amount of work in the sake of calculation. Your voice is not coming clearly. Okay, sir. Just let me check. So it is. Okay, so what was you telling? हेलो सर. सर अभी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, बोलिए। लोड फ्लो में जेड बस का यूज क्यों करते हैं और फॉल्ट एनालिसिस में लोड फ्लो में वाई बस और फॉल्ट एनालिसिस में जेड बस का यूज क्यों करते हैं? हेलो. एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? ओके, तो कंटिन्यू विद योर आंसर. Okay, sir. In fault calculation, sir, we are using the JetBus because it is a full matrix, and in the calculation for the fault analysis, we need the values of impedance. So it will help us to know the values for voltage drop and jet calculation. But in the fault, in the load flow, we are using the Vibus because of the sparsity of the Vibus. The calculation will be easy for us. That's why we are using the Vibus in load flow and JetBus in the fault calculation. Okay, tell me one thing. While connecting the transformer, okay, with the circuit breaker and the isolator and the earth switch, how the sequence is being maintained before and after the maintenance of a transformer? Okay, sir. Before the maintenance, we have to isolate. Before the maintenance, I think open the circuit breaker, then the insulator, isolator, and then we have to close the earth switch before the maintenance. And after the maintenance, we have to open the earth switch and then close the isolator, and then close. We have to close the circuit breaker. Okay, for the earthing, which type of metal we are using in a transformer, motor, or generator? We can use the resistance uh, earthing. We can use a resistant earthing with low value of resistance for In a earthing. transformer. ट्रांसफार्मर में हम रेजिस्टेंस अर्थिंग का यूज करते हैं. सर मतलब मुझे श्योर नहीं है, लेकिन हाँ रेजिस्टेंस अर्थिंग मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है बस. तो जनरेटर में क्या यूज करते हैं?
जनरेटर में रेजिस्टेंस अर्थिंग यूज करते हैं हम। ओके, और मोटर में? मोटर में रेजिस्टेंस अर्थिंग भी यूज कर सकते हैं, रिएक्टेंस अर्थिंग भी यूज करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? सर रीजन नहीं पता मुझे अभी। अच्छा ये बताइए, जैसे कि हम मेरा ट्रांसफार्मर है, ओके, आपके घर की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होगा, जी राइट? और स्विच यार्ड या डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन पे पावर ट्रांसफार्मर लगा होगा। ठीक तो है। कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जहाँ पे हम लोग पावर ट्रांसफार्मर की जगह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सर मुझे क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा प्लीज रिपीट करिएगा। Give an example where we can use distribution transformer in place of power transformer. ओके। अच्छा, पावर ट्रांसफार्मर की जगह पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज करना अच्छा। है, उनके केसेस बताने हैं। हम्म। ओके। पहले तो ये बताइए कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं और पावर ट्रांसफार्मर हम क्यों लगाते हैं, और लगाने यस से सर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अगर हम पावर ट्रांसफार्मर की जगह पे लगाएंगे तो क्या क्या डिमेरिट होंगे, और अगर डिमेरिट नहीं होंगे तो क्या हम कौन कौन से रिप्लेसमेंट में इसको लगा सकते हैं? जैसे अगर हम फुल लोड पे ऑपरेट कराना चाहते हैं, तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का तो काम है कि 24 आवर्स उसको रिकॉर्ड करना होता है, लोड जो भी वेरिएशन ऑफ लोड है उसको, कंजम्पशन को देखना पड़ता है। तो जहाँ भी हमें फुल हम्म। लोड, अगर हमें कहीं पे भी ऑपरेट करा रहे हैं फुल लोड के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करा सकते हैं। जहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर हमें पूरी करनी है तो हम यूज कर सकते हैं एक केस में। तो अच्छा मान लेते हैं यू गॉट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, और आपको रिपोर्ट आई है कि ट्रांसफार्मर लोडिंग ले नहीं रहा है। लोडिंग, ओके। ओके, थ्री फेज ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पर वो लोड ले नहीं पा रहा है। ओके सर। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? जैसे फॉल्ट की कंडीशन हो सकती है, ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम हो सकता है, और लोड जितना कैपेसिटी है अगर उससे ज्यादा होगा तो मे बी उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। लोड अगर ज्यादा रहा तो ट्रांसफार्मर स्टार्टअप नहीं लेगा। हाँ, तो वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा एफिशिएंटली। फेज सीक्वेंस का भी कोई रोल होता है? फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, इनकमिंग आउटगोइंग जो भी मशीन्स हैं उनका एक फेज सीक्वेंस फॉलो अप होना चाहिए, जैसे पैरेलल ऑपरेशन में हम करते हैं। अगर अच्छा। उसमें प्रॉब्लम है जी। ठीक है। अगर मेरे को डेल्टा स्टार कनेक्शन करना है, जी ठीक है, तो पेन कॉपी है आपके पास? यस सर। हम्म अगर मेरे को डेल्टा स्टार कनेक्शन करना है, इनकमिंग थ्री फेज आई है और आउटगोइंग थ्री फेज है, तो आप किस तरह से कनेक्ट करेंगे? इनकमिंग भी थ्री फेज है, आउटगोइंग भी थ्री फेज है, और डेल्टा हमें ट्रांसफार्मर में यूज करना है। ट्रांसफार्मर में यूज करना है। ओके। तो सर हमें एक मतलब जैसे न्यूट्रल, विदाउट न्यूट्रल के भी कर सकते हैं हम इसको न्यूट्रल तो हो सेम। जाएगा, न्यूट्रल के अलावा बताइए। क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या, पूछना क्या चाह रहे हैं? हाँ सर, एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा। थ्री फेज कनेक्शन है आपका, इनकमिंग, ओके, मोटर को कनेक्ट करना है आपको स्टार डेल्टा में। अच्छा, स्टार डेल्टा में हमें ये ऑपरेशन बताना है स्टार डेल्टा का। ऑपरेशन बताना है। ओके। सर स्टार डेल्टा में पहले क्या करते हैं कि हमने कनेक्शन दिया स्टार में, हम मतलब जो भी हम्म थ्री फेज सप्लाई आ रही है उस स्टार में दिया, उसके बाद जब हम उसको डेल्टा में भेजेंगे तो रिड्यूस वोल्टेज हमें मिलता है। रिड्यूस वोल्टेज की वजह से फिर हमारा जो सर मुझे एक्चुअली बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बट थोड़ा बहुत मैं बता सकती हूँ।
स्टार डेल्टा स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं सर आप ना? स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके, स्टार डेल्टा तो 3 फेज सप्लाई हम इनकमिंग में स्टार में देंगे और डेल्टा में हम आउट, मतलब उसको हम ले सकते हैं आउटगोइंग में। अच्छा मेरे को ये बात बताइए, कॉन्ट्रैक्टर आपने पढ़ा है? कॉन्ट्रैक्टर हाँ स्टार डेल्टा में यूज होता है। कैसे यूज होता है कॉन्ट्रैक्टर स्टार डेल्टा में? जैसे हमने रनिंग स्टार्ट कर दी, हमने 80% ऑफ रेटेड वोल्टेज अचीव कर लिया। उसके बाद ये जो कनेक्शन होता है प्रीवियस कनेक्शन को छोड़ के 2 और 3 सेकेंड का गैप के बाद ये दूसरे कनेक्शन या तो स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार में कनेक्ट होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही होता है। कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है? कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली एक जैसे हम पहले मैनुअली स्टार टू डेल्टा कनेक्ट करते थे जब हमारा 80% अचीव होता था, तो उसको हटाने के लिए एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कि जब हमारा जो भी पर्पस है 80% या 70% रेटेड हमें मिल जाता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिवाइस दूसरे कनेक्शन पे चला जाता है ताकि रनिंग की कंडीशन स्टार्टिंग हो गया, अभी रनिंग के लिए वो फिर कनेक्ट करता है दूसरे को। तो मैनुअली स्टार्ट ऑपरेशन थोड़ा मतलब उसको हटाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्टर यूज होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइन में, ओके, इफ यू गॉट द न्यूज कि कहीं पे फॉल्ट आई है, ओके सर। ठीक है, तो आप क्या क्या सेफ्टी हैजार्ड्स फॉलो करेंगे अगर आप साइट पे पहुंचे हैं? हम्म। मान लीजिए आपको पता नहीं कौन सा फॉल्ट है, ठीक है, ड्यू टू द ओके। स्टॉर्म क्या क्या फॉल्ट हो सकता है और उसको ओवरकम करने के लिए आप क्या क्या करेंगे? जैसे कि कुछ फॉल्ट जैसे जो सर्किट ब्रेकर है, अगर रिले के हेल्प से अगर वो फॉल्ट जान जाता है तो वो सर्किट ब्रेकर ओपन कर सकता है, तो उससे एक सेफ्टी हम्म, हो सकती है। दूसरा, अगर ट्रांस जैसे अलग अलग डिवाइसेस है उनका अलग अलग सेफ्टी है, तो अगर जो हमारे इंपॉर्टेंट डिवाइसेस से ट्रांसफार्मर है वहाँ पे भी हम सर्किट ब्रेकर यूज कर सकते हैं ताकि हमारा जो भी फॉल्टी सेक्शन है वो हेल्दी सेक्शन से अलग हो जाए। एंड अगर जैसे कुछ सर्जेस आते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो उसके लिए भी आप लाइटनिंग अरेस्टर्स यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अगर फॉल्ट होते हैं तो उसको हम स्टडी स्टेट एनालिसिस के थ्रू भी, अगर हम कैलकुलेशन पे जाए तो उसके थ्रू कर सकते हैं, और बाकी जो भी हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं उसको यूज कर सकते हैं। कि लाइटनिंग प्रोटेक्टिंग डिवाइस है क्या? ये बेसिकली प्रोटेक्टिव तो नहीं करता है, लेकिन हाँ हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पे सर्जेस आए हुए हैं। अच्छा लाइटनिंग रजिस्टर अलग होता है, सर्ज रजिस्टर अलग होता है? लाइटनिंग जो सर्जेस मतलब जैसे लाइटनिंग हुई तो वो सर्जेस है एक तरीके का, तो उसको अगर हमारा जो ये डिवाइस है लाइटनिंग अरेस्टर वो हमें मतलब उसको न्यूट्रल कर देता है, मतलब ग्राउंड कर देता है। हम्म। अच्छा ये अर्थवायर का यूज हम कहाँ करते हैं? किसका सर? अर्थवायर। अर्थवायर जो भी मतलब अगर कभी भी हमारे हेल्दी सेक्शंस में जब करंट ज्यादा आ जाता है तो उसको हम ग्राउंड करने के लिए अर्थ स्विचेस लगाते हैं, अर्थ वायर लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। वो प्रोटेक्शन के लिए ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिटिंग लाइन में अर्थवायर कहाँ लगाते हैं? ओके सर, ये नहीं पता है मुझे। ट्रांसमिटिंग लाइन में कौन कौन से फॉल्ट आ सकते हैं? ओके, ये लाइटनिंग की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, कोरोना की जो कोरोना जो फिनोमेना है वो अकर हो सकता है। हम्म एंड हम्म और ये अगर क्या कहते हैं उसको, ये जैसे कोई ट्रांसमिशन कोई कम्युनिकेशन वायर्स है तो वहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस स्टार्ट हो सकता है, तो ये कुछ चीजें हैं जो अफेक्ट कर सकती है ट्रांसमिशन लाइन को।
ओके। अच्छा एक बात बताइए, फॉर द नॉर्मल यूजर एंड फॉर द कमर्शियल यूजर ये टैरिफ हम्म। डिफरेंट होता है या अलग अलग होता है, सेम सर होता है या टैरिफ, डिफरेंट होता है? सर अलग अलग होता है। इंडस्ट्रियल की जो टैरिफ होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, और जो डोमेस्टिक का टैरिफ होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए कंज्यूमर को या फिर फार्मर को एडवाइस दिया जाता है कि ऑफ पीक लोड टाइम पे आप अपना मेजर इक्विपमेंट को ऑपरेट कीजिए। क्या सर? ऑफ पीक लोड टाइम क्या होता है? ऑफ पीक लोड मतलब जिस टाइम पे हमारा लोड, मतलब ऑफ पीक का मतलब होगा कि जब पीक लोड नहीं हमें मिलता है, अदर देन पीक हम्म लोड टाइमिंग को ऑफ पीक लोड बोलेंगे। हम्म हम्म। तो आपके हिसाब से ये ऑन पीक लोड टाइमिंग और ऑफ पीक लोड टाइमिंग क्या क्या होते हैं? कौन सा ड्यूरेशन होता है जब इनको कहा जाता है कि ऑफ पीक लोड टाइम है या ऑन पीक लोड टाइम है? ओके, जैसे थ्रू आउट द डे कभी क्या होता है कि कंजप्शन ऑफ लोड जो कंजप्शन है पावर का वो कम होता है, तो वो ऑफ में आएगा। हम्म। अगर पीक लोड पे ज्यादा आ रहा है तो ऑन पीक लोड कह सकते हैं उसे। अच्छा। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि अभी आपने बताया कि सबके टैरिफ डिफरेंट होते हैं, तो अगर एक न्यूज आई है कि फॉर द सम रीजन किसी हाउस होल्ड में उनके मीटर का रीडिंग ज्यादा जा रहा है, ज्यादा आ रहा है, हाँ हाँ जी। ज्यादा आ रहा है, तो उनका टैरिफ क्या सेम होता है या फिर उनका भी टैरिफ वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं उनका उसके हिसाब से होता है? सर इसका एग्जैक्ट आंसर तो मुझे नहीं पता है। ये तो पता है कि हाँ कुछ कुछ लोग की जो बिल आते हैं तो वो कुछ ज्यादा ही आते हैं। क्यों अ, क्यों आता है? कुछ टैरिफ की वजह से, कुछ इंक्रीमेंट ऑफ टैरिफ की वजह से। कितने बट तरह के इतनी, टैरिफ होते हैं? सर फ्लैट टैरिफ होता है, एंड फ्लैट टाइप टैरिफ होता है, इंडस, और सर एक ही दो मुझे याद आ रहे हैं एक्चुअली अभी तो। कि ये आइसलैंडिंग क्या होती है? क्या सर? आइसलैंडिंग। आइसलैंडिंग जैसे, आइसलैंडिंग जैसे जहाँ पे हमारी जहाँ पे थोड़े पहाड़ होते हैं, और जहाँ पे वेदर थोड़ी मतलब जहाँ पे आइस गिरती है तो वहाँ पे आइलैंड। वायर्स में। आईलैंडिंग, आइलैंड। आइलैंडिंग। सर नहीं पता मुझे। आइसलैंडिंग क्या बोल रहे थे आप? सर मुझे लगा कि वो जो वायर्स पे बहुत सारे आइस आ जाते हैं तो एक सैग हमें मिलता है वायर्स के लिए, तो मुझे लगा वो फिनोमेना पूछ रहे हैं। अच्छा, ट्रांसमिटिंग लाइन है वो अगर आइस में लैंड हो गई तो दैट इज कॉल्ड आइसलैंडिंग। नहीं, जैसे मतलब हम ऐसी जगहों को ऑपरेट करने के लिए मतलब प्रोटेक्शन यूज करते हैं, कुछ इंसुलेटर अलग से लगाते हैं, तो मतलब उनकी सेफ्टी के लिए मुझे लगा। इसका आंसर तो नहीं पता है सर। ओके, वैशाली लिसन, थोड़े से बेसिक पे काम करो अपने। ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन मोरलेस यही इसी इसी हिसाब से पूछे जाएंगे, एग्जैक्ट तो नहीं, पर वो तुमसे ये ट्रांसमिटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइन में क्या क्या वहाँ प्रॉब्लम फेस होती है, जी। वो एक एक तो मेजर क्वेश्चन है कि जो डेप्थ है इसको किस तरह से कम कर सकती हो। तो डेप्थ को कम करने के लिए ये जो टैरिफ है और जो तुम पेनल्टी लगाती हो, हम्म। तो किन तरह के टैरिफ होते हैं और क्या क्या तुम क्या क्या कर सकते हो, तो ओके that सर। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, ठीक है। हम्म। और अर्थिंग के बारे में एक बार देख लेना, कहाँ पर क्यों लगाते हैं और इसका क्या मेन रीजन क्या है। ठीक है सर। पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, कॉस्टली होता है, तो उसके जगह पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कभी कभी यूज कर लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो कहाँ कौन कौन सा केस होता है, क्या कंडीशन होता है। हम्म। ओके, ठीक है सर। इकोनॉमिकली वाइबिलिटी के हिसाब से रीजन को सेग्रीगेट करना, और सर उस किसको? हिसाब से इकोनॉमिकल कंडीशन या रीजन के हिसाब से हम्म। किसी पर्टिकुलर प्लेस को सेग्रीगेट करना, ताकि ऑफ पीक लो टाइम, ऑन पीक लो टाइम में कमर्शियल यूजेज या नॉर्मल यूजेज में किस तरह से टैरिफ
जो टैरिफ होता है उस हिसाब से किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और बिजली तो सबको प्रोवाइड करनी है, सबका काम है, तो किस तरह से तुम टाइम को मैनेज करते हो। तो ये सब क्वेश्चन, इट इज अ टाइप ऑफ मैनेजरियल क्वेश्चन। ओके सर। ओके, इनका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है, थोड़ा सा थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग लगो। सर ये आइस लैंडिंग का क्या था आंसर? आइलैंडिंग होता है। आई लैंडिंग का? हम्म। क्या होती है कि किसी इमरजेंसी पर्पस के लिए वो अपने अंदर ही प्लांट या फिर कोई सिस्टम अपने अंदर ही ब्लैकआउट के कंडीशन में फॉर द इमरजेंसी पर्पस पावर सोर्स जनरेट करते हैं, ताकि पावर वहां पर कभी कटे नहीं। ओके, इमरजेंसी के लिए से बैकअप कर के जैसा। बैकअप। एक तो यूपीएस होता है, एक तुम्हारा बैटरी बैंक होता है, उसके बाद ये आइलैंडिंग होती है। इसमें क्या होता है कि 2012 में जो ब्लैकआउट आया था, ब्लैकआउट के बारे में एक बार देख लेना। जो ठीक है सर। शेड्यूल हम लोग किए थे वायर पे, उसके कारण क्या होता है कि लोड ज्यादा हो गया था दिल्ली हम्म। आगरा लाइन में। हम्म। तो 24 घंटे लाइट होती, तो ये जो तुम्हारा हॉस्पिटल सब जो होते हैं, जी। ये यहाँ पे काम आता है। ठीक है। ओके। और ये जैसे कि जैसे सर जो मैनेजरियल क्वेश्चन आप बोल रहे हैं उसका अभी मुझे इतना कुछ तो आइडिया नहीं है। जैसे टैरिफ्स का नाम ही पता है बस, और इस मतलब बारे उतना में एक कुछ बार देख डिटेल लो, में एक बार देख लो। इसको। ठीक है, ये देख लूंगी।